کھڑے کھڑے اپنے ایمان کا اقرار کر۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدائے قادر قدرت باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے اقدام سے پیٹ میں پڑا ہماری مریم 35 پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدائے قادر مطلب باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک عالمگیر کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ آئیں خدا کے زندہ کلام میں سے آج اپنی اصلاح کے لیے ذرا سیکھیں گے، دیکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ چرچ میں موجود ہیں سارے جب دعا کریں تو آج کے دن کے لیے آپ نے خاص دعا کرنی ہے کہ خداوند تمام ملک میں آج کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہ ہو، خدا کے لوگ محفوظ رہیں، سیف رہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی دلیری ہے کہ آپ لوگ چرچ آئے ہیں، اور ہمیں چرچ سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا، لیکن اگر ہم ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے تو پھر کیا تاج ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے 15 باب کو دیکھنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر ذرا ہم 14 باب کو دیکھیں۔ 14 باب کی پہلی 3-4 آیات کو ہم دیکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں اس کو آپ اسی کے ساتھ ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن کے لیے پتہ نا کیا ہوا ہے، پتہ ہے نا، آج کے دن سخت وارننگ ہے۔ چرچز میں الرٹ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے چرچ کے ارد گرد کسی جس کو آپ جانتے نہیں، کسی موٹر سائیکل کو، کسی گاڑی کو نہیں آپ نے آنے دینا، کسی شخص کو اندر نہیں آنے دینا۔ آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی بہتر دینا ہے، آپ لوگوں نے چرچ کو کوشش کرنی ہے کہ وقت سے پہلے کلوز کر دیں۔ سو آئیں پڑھتے ہیں ذرا، اور اسی سے ہم آج کے دن کے تعلق سے تھوڑا سا سیکھیں گے۔ ہاں جی، پہلی آیت سے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی اخروت کے مقابل بال سمون کے آگے ڈیرے لگائے۔ اب خدا چاہتا ہے بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ واپس اسی جگہ پہ جائے جہاں سے یہ نکلے ہیں۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو کیا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا؟
बार बार ऐसे वाकयात होते हैं और बार बार हमें भी घेर के उसी जगह पे लाके खड़ा किया जाता है। बार बार वही वाकयात होते हैं और हमारे लिए भी वही परेशानी, वही मुश्किल। लेकिन शायद ये खुदा की मर्जी है। खुदा अपने लोगों को चेक करता है कि कितने का मजबूत हैं, कितने के बहादुर हैं। ऐसे लोग भी हैं, थोड़ी गर्मी ज्यादा आ जाए तो घर से नहीं निकलना, पूछें क्या हुआ, गर्मी बड़ी सी इस करके चर्च नहीं आए, सर्दी बड़ी सी चर्च नहीं आए। क्या हमारा प्यार मोहब्बत खुदावंद के साथ ये है? यहां पे आप देखते हैं कि खुदा वो काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन खुदा कहता मूसा इनको वापस उसी जगह पे लेके जा, उसी जगह पे लेके जा, क्योंकि मैं वहां पे अपना जोरे बाजू दिखाने वाला हूं। आज भी खुदा अपना जोरे बाजू दिखाएगा, वो दिखाने वाला है। शायद इसीलिए बार बार हमें इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जाता है, जिससे हम परेशान होते हैं। जब परेशान होते हैं तो खुदा हमारे साथ खड़ा होता है। यहां देखते हैं कि खुदा मूसा को कहता वापस चल, और बनी इस्राएल कौम को जब वहां पर जाके डेरे लगा लेते हैं तो फिर फराउन के दिल को क्या करता है? सख्त करता है। आज भी उसने शायद कुछ लोगों के दिल को क्या कर दिया है? सख्त कर दिया है, सख्त कर दिया है। लेकिन जिनके दिल वो सख्त करता है, फिर उनको वो सिखाता है, उनको अपनी ताकत भी दिखाता है। वो अपना आप दिखाता है कि मैं खुदा हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। खुदा ने चाहा तो वो लोग शर्मिंदा होंगे जो ऐसे मंसूबे बांधते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं। खुदा उनको क्या करेगा? शर्मिंदा करेगा। फिर जब फौजों को आते हुए देखा बनी इस्राएल कौम ने, तो परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एकदम से मूसा के साथ सबसे पहले खुदा के सामने क्या करते हैं? गिड़गिड़ाते हैं, सबसे पहले खुदा के सामने झुकते हैं। आज हमें भी सबसे पहले किसके आगे झुकने की जरूरत है? खुदा के सामने। आज बड़ा अच्छा हुआ, यहां पे जितने बच्चे आए, 3 के बच्चे थे, बेटियां थी, सबने यहां पे घुटने टेक के सबसे पहले दुआ की, खुदा से इल्तिजा की कि खुदा आज सारा दिन कोई ऐसा वाकया ना हो जिससे हमारी कौम पर कोई मुश्किल या परेशानी आती है। इसलिए हमें दुआ में हर वक्त खुदा के आगे झुकने की जरूरत है। यहां पे हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम पहले तो खुदा के आगे इल्तिजा करती है और फिर मूसा के सामने क्या है? बुड़बड़ाती। हम भी तो करते हैं ना, उन्होंने की लोड़ से ये काम करता, उन्हें कीता तो ऐसे भी फंस गए, हमारे लिए मुश्किलें पैदा होगी। हम भी सेम वही काम करते हैं ना, हमारा भी वही काम है। हम पहले खुदा से गिड़गिड़ाते हैं, खुदा तू हिफाजत कर, और दूसरी तरफ उसको कहते कि नहीं इसने गलत काम किया। वाकई उसने गलत काम किया, उसको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई मजहब ऐसा नहीं जो किसी को दुख देने के लिए उभारता है। फिर हमारा मजहब जो है, हमारी जो तालीम है वो मोहब्बत से भरी हुई है। खुदा यीशु मसीह तो इतने प्यार से भरे हुए थे, जब उनको मारा जा रहा था, जब उनको सलीब पे चढ़ाया गया था, फिर भी वो कहते हैं बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फिर खुदा यीशु मसीह की तालीम है कि तेरे एक गाल पर कोई तमाचा मारता तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये है मोहब्बत। मोहब्बत ये नहीं कि हम भी जवाब देना शुरू करें, वो जो मर्जी करे, हम परेशान नहीं होना हमने, और ना हमने कोई जवाब देना है। हमने अपने फैसले जो है वो खुदा पे छोड़ने, क्योंकि खुदा मुहाफिज है। जब परेशान होते हैं तो बुड़बुड़ाते हैं, तो मूसा क्या जवाब देता है? मूसा कहता है चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी आपस में यही कहें कि चुपचाप खड़े रहें और खुदा की निजात के काम देखें। खुदा निजात देने वाला है, और फिर उसके बाद खुशहाली है। आए अब 16 बाब में आ जाए, जरा 15 बाब को आज हमने देखना है। तब मूसा और बनी इस्राएल ने खुदावंद के लिए यह गीत गाया और यूं कहने लगे,
सबसे पहले जब पार हो जाते हैं, उस मुश्किल से निकल आते हैं और सबसे पहले वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं। शायद ये पहला गीत था जो वहां पे गाया गया। इससे पहले कहीं किसी गीत का जिक्र हमें नहीं मिलता, लेकिन यहां पे लिखा है कि मूसा क्या करता है, तमाम यहूदियों को लेके, तमाम बनी इस्राएल कौम को लेके क्या करता है, हम तो सुना करता है, गीत गाता है, और गीत के अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। पढ़े जरा। और यूं कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, हाँ जी, क्योंकि वह जलाल के साथ फतेहमंद हुआ। ये है फतह का गीत, ये है सुलह का गीत, ये है निजात का गीत। और मूसा गा गा के बताता है कि किस तरीके से खुदा ने हमें फतह बख्शी है, किस तरीके से खुदा ने हमें फतह बख्शी है। आज भी जब हम खुश होते हैं तो खुदा का कलाम भी पौलुस रसूल अपने खतों में लिखता है कि जब तुम खुश होते हो तो क्या करो, हमद के गीत गाओ, रूहानी गजलें गाओ। और आज हमें जरूरत है कि इसके बाद यही कुछ होगा कि हम अपने घरों में, अपने चर्चेज में शुक्रगुजारी के गीत गाएंगे, जिस तरह बनी इस्राएल कौम खुशी से गीत गाते हैं और कहते हैं खुदावन तेरी हमद हो। हाँ जी, पढ़े इसको। उसने घोड़ों को सवार समेत समंदर में डाल दिया। खुदावन मेरा जोर और राख है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वही मेरी निजात भी ठहरा, वही सारा कुछ करने की ताकत है, कुदरत है उसमें। जी आगे। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बुराई करूंगा। वो मेरा खुदा है और मैं उसकी क्या करूंगा, बुराई। हमें भी जरूरत है, वो हमारा खुदा है, हमें उसकी बुराई करने की जरूरत है। और जब हम उसको पुकारते हैं, उसके ताबिया हो जाते हैं, उसके आगे झुकते हैं, तो फिर हमें ये सारी परेशानियां हमसे दूर हो जाती हैं, फिर हम डरने वाले नहीं हैं। अभी हमने एक गीत गाया, कौन सा गीत था, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। और अंजील को फैलाना वाकई ये काम हमारा है, हम सब का है। और फिर उसी में हम गाते हैं, कंधों पे सलीबे हो, अंजील हो हाथों में, क्या करेंगे, दुनिया को बता देंगे कि यीशु ही कफारा है। वाकई ही यीशु मसीह कफारा है। वो हमें ऐसा दर्द देता है, वो हमें प्यार करना सिखाता है, वो हमें ताबेदारी करना सिखाता है। हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ उसी को पुकार सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम उसको पुकारे, उससे कहें कि खुदावन तू हमारी हिफाजत कर। हम नहीं हिफाजत कर सकते। बड़ा कुछ मेरे पास एक लेटर की तरह लिख के आया, बड़ी वॉइस मैसेज भी आए, लेकिन मैंने कहा कल भी हम परेशान जब आ रहे थे तो यही बातें होती, मैं क्या, अगर खुदा चाहेगा तो खुदा भी हमें छोड़ने की जरूरत है। हम अपनी ताकत से क्या कर सकते हैं, जो ताकत वो देता है उसी से हम कर सकते हैं। वो हमारी पनाहगाह है, वो हमारा मुहकम किला है, वो हमें छुपाता है, वो हमारे छुपने की जगह है। इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिलेरी के साथ बाहर निकलें, खुदा की हम्द करें, उसके घरों में जाएं, उससे पुकारें कि खुदा इस वक्त हमें तुम्हारी जरूरत है। रहती तो हर वक्त जरूरत है, लेकिन कुछ लोगों की जरूरत उसी वक्त होती है जब वो मुश्किल और परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए तमाम कौम को चाहिए कि इस वक्त खुदा के घरों में आए। लेकिन मैं समझता हूं कि लोग अब डर के घर बैठ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, चर्च नहीं जाना, बम ना चल जाए। लेकिन अगर घर में चल गया तो फिर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए फख्र के साथ हमें लिखा है, हम अभी गा रहे थे, हम एक खून का हर एक कतरा हंस हंस के बहा देंगे। किसके लिए, खुदा के लिए। खुदा के लिए मरने के लिए तैयार रहें और जान देने तक वफादार रहें, ताकि खुदा आपको जिंदगी का ताज दे। ये बड़ा खूबसूरत गीत है जो मूसा और बनी इस्राएल कौम बियाबान में गा रहे हैं। वहां कोई ऐसा इंतजाम नहीं है, लेकिन जब वो खुशी से पार हो जाते हैं, जब वो सारा मंजर देखते हैं, किस तरीके से फराउन की सारी फौजों को मार दिया गया, किस तरीके से वो तबाह बर्बाद हो गए, उनका नामो निशान नहीं रहा, तो उसके बाद सारे खुशी से क्या करते हैं, गीत गाते हैं। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी खुदा से कहें कि खुदा तो हमें फतह पाओ, ताकि हम भी तेरी हम तो सना करें और गीत
गा सकें। पढ़ें आगे जी थोड़ा और। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावन साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। यहोवा उसका नाम है। वाकई वो यहोवा है, वो यहोवा यरी है। हर चीज मुहैया करने की कुदरत है उसी के पास है। वही हमें बचा सकता है, वही हमें छुड़ा सकता है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा करने की जरूरत है। आगे फराउन के रथों और लश्कर को उसने समुद्र में डाल अब वो दिया। गीत में बयान कर रहे हैं कि रथों समेत फराउन को क्या कर दिया उसने? तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, डुबो दिया। ये उनकी खुशी की इजहार था, वो ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। आगे और उसके चेदा सरदार बहरे कुलजम में गर्क हुए। उसके चीदा चीदा जो सरदार हैं, जो ललकारते थे, जो ये समझते थे कि अब जाके हम उनको मार देंगे, उन सबको उसने क्या कर दिया? गर्क कर दिया, खत्म कर दिया। आज हमें भी जरूरत है कि हम खुदा पर भरोसा करें। खुदा ही सारा कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। जी आगे गहरे पानी ने उनको छुपा लिया, वो पत्थर की माने तह में चले गए। ऐ खुदावन तेरा दाना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। ऐ खुदावन तेरा दाना हाथ दुश्मन को चकनाचूर कर देता है। तो अपनी अजमत के जोर से अपने मुखालफों को तबाला करता है, तो अपना कहर भेजता है और उनको खुंटी की मानिंद भस्म कर डालता है। तेरे नथनों के दम से पानी का ढेर लग गया, सैलाब तोते की तरह सीधे खड़े हो गए और गहरा पानी समुद्र के बीच में जम गया। समंदर ने तो ये कहा था मैं पीछा, दुश्मन ने तो ये कहा था मैं पीछा करूंगा। मैं क्या करूंगा? पीछा करूंगा और इनको घेर लूंगा। जी पढ़े आगे। मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट का माल तकसीम करूंगा। मैं लूट का माल तकसीम करूंगा। उनकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा होगा। उनकी तबाही से मेरा कलेजा क्या है? ठंडा होगा। शायद यही मंसूबा है कि कलेजे को ठंडक डालनी चाहती है कि कलेजे को ठंडक कैसे पड़ेगी। लेकिन हमें अपने खुदा पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो हमारी जंग लड़ता है। वो आज भी हमारे लिए जंग करेगा और वो जंग करता रहता है। जब उसके लोग उसको पुकारते हैं, उसके आगे इल्तिजा करते हैं, तो फिर वो साबी जंग बन जाता है। वो उठकर आता है और अपने लोगों की हिफाजत करता है। पढ़े आगे और। मैं अपनी तलवार खींचकर अपने ही हाथ से उनको हलाक करूंगा। तूने अपनी आंधी की फूंक मारी तो समंदर ने उनको छुपा लिया। वो जोर के पानी में शीशे की तरह डूब गए। वो पानी में शीशे की तरह क्या हो गए? डूब गए। ये गीत के कितने खूबसूरत अल्फाज है जो बनी इसराइल कौम गा रही है, जो मूसा गा रहा है। इतने खूबसूरत अल्फाज हैं इसके, और इसमें सारा मंजर जो है वो नजर आता है। जिस तरह हम गीत गाते हैं तो कई बार अगर आप उसकी गहराई में जाएं तो फिर आपको समझ आती है कि ये किस लिए लिखा गया है। ये गीत इस तरीके से लिखा गया है कि वहां उनके सामने ये सारा मंजर हुआ था और उन्होंने इसको कलम बंद कर दिया। यहाँ पे कलम बंद नजर आता है कि किसी खुशी से उन्होंने ये गीत गाया, और गीत गाते हुए वो कैसे खुशी से ललकार रहे थे। आगे चले जरा। बाबूतों में आय खुदावन तेरी मानित कौन है? कौन है जो तेरी मानित अपने तुकद्दुस के बायस जलाली और अपनी बता के सबब से रौब वाला और साहिब करामात है? 17 पे आ जाओ, 17 से पढ़ना शुरू करें। तो उनको वहां ले जाकर अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा, तो उनको उसी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सुकूनत के लिए बनाया है। ऐ खुदावंद वो तेरी जाय मुकद्दस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है। खुदावंद अब्दुल-बाद सल्तनत करेगा। कौन अब्दुल-बाद सल्तनत करेगा? खुदावंद। खुदावंद अब्दुल-बाद एंड तक खुदा ही कायम रहेगा और वो सल्तनत करता रहे। और आगे एक और गीत का जिक्र आता है, पढ़े जरा। ये मरियम का गीत है। इसके अल्फाज भी बड़े खूबसूरत हैं और यहाँ से हमें तमाम ईमानदारों को एक सबक मिलता है कि किस तरीके से जब हम फतह पाते हैं तो किस तरीके से हम इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। आगे इस गीत का सबब यह था कि फराउन के सवार घोड़ों और रथों समेत समुद्र में गए
और खुदावन समुद्र के पानी को उन पर लौटा लाया, लेकिन बनी इसराइल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गई। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचते हुए उसके पीछे चली। दफ लेकर क्या है, नाचती हुई बाहर निकली, उसके पीछे हो ली और उन्होंने एक खूबसूरत गीत गाया। गाएं, पढ़े जी उसको भी जरा। और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावन की हम तो सना गाओ, खुदावन की हम तो सना गाओ, क्योंकि वह जलाल के साथ फतेहमंद हुआ है। जो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ है। कितने लोगों का ईमान है कि आज भी खुदा फतेहमंद होगा जलाल के साथ। और खुदावन ने चाहा तो पूरे मुल्क में किसी ऐसी खबर नहीं आएगी जिससे हमें दुख पहुंचे। इसलिए जरूरत है कि हम खुदा को पुकारें और अपने घरों में भी आज सारा दिन जब भी बैठे तो उससे कहें कि खुदावन तो हमारे लोगों की हिफाजत करना। क्योंकि कुछ चर्च लग चुके हैं, कुछ लगने वाले हैं और कुछ शाम को लगेंगे। इसलिए आज का सारा दिन जो है बड़ा अहमियत का हामिल है। इसलिए आज सारा दिन हमें दुआ में रहने की जरूरत है। जी आगे बढ़े। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समुद्र में डाल दिया है। आगे पढ़े आगे। फिर मूसा बनी इसराइल को बहर कुलजम से आगे ले गया और वो शूर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी न सके क्योंकि वो कड़वा था। क्योंकि वो कड़वा था। मारा का मतलब है कड़वा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मारा में जाते हैं वहां को पानी तो मिल जाता है, लेकिन वो पानी क्या है, कड़वा है, वो पीने के काबिल नहीं है, खारा पानी है। लेकिन क्या हुआ, पढ़े जरा। इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिए। उसने खुदावन से फरियाद की। खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मंजर कलवरी की तरफ चले जाएं, सलीब पर चले जाएं, यहाँ पे भी तलख यादें हैं, कड़वा पानी। शायद खुदा उनको कड़वाहट याद करवा रहा था कि पीछे तुमने कितनी कड़वाहट सही है, तुम कैसे गुलामी में रहे, कितनी मुश्किल में रहे, गुनाहों की गुलामी, हर चीज की गुलामी, और उसमें तुम कड़वाहट में बड़े हुए थे। लेकिन खुदा मूसा को कहता है एक दरख्त की एक शाख ले और इसमें डाल दे, और पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। आज जब हम खुदा यीशु मसीह की सलीब के पास आ जाते हैं तो तमाम वो तलख जो कड़वाहट है हमारी जिंदगी से वो चले जाती है, वो खत्म हो जाती है। सलीब वाहद वो लकड़ी है, सलीब वाहद वो जरिया है जिससे हम अपनी कड़वाहट को खत्म कर सकते हैं। यहां देखते हैं, पढ़े जरा इसको। वही खुदावन ने उनके लिए एक आइन और शरीयत बनाई। फिर खुदा ने अपने आप का तारफ करवाया। खुदा ने तारफ क्या करवाया, मैं क्या हूं। खुदावन ने तारफ करवाया, मैं यहोवा शाफी हूं, यहोवा राफा हूं। खुदावन खुद शिफा देता है। खुदा वहां पे उनको अपना आप जाहिर करता है और कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक आइन है, एक कानून है, और वो कानून क्या है कि तुम मेरे हुक्मों को मानना, और मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। पढ़े जरा। और वही ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से क्योंकि खुदा क्या है, शाफी है, शिफा देने वाला है। वहां वो तारफ करवा रहा अपना कि मैं शिफा देने वाला हूं। जो मिस्रियों को मैंने बीमारियां लगाई थी वो बीमारियां मैं तुम्हें नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं तो शिफा देने वाला हूं, मैं शिफा का मंबा हूं। खुदा वहां पे अपना तारफ करवा रहा है। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम याद रखें कि हमें कोई बीमारी घेर नहीं सकती, क्योंकि हमारा खुदा शाफी खुदा है। खुदा वादा करता है, पढ़े जरा। तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। फिर वो अलीम में आए जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे, और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। और क्या किया, डेरे लगाए और आराम किया। आज जब हम भी ऐसी जगह पे अगर जाना चाहते हैं, आराम पाना चाहते हैं,
तो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए ताकि हमें भी आराम मिले। और फिर हम सारी परेशानियों को क्या करते हैं, भूल जाते। बड़ी इसराइल पुरानी चीजों को क्या करती, भूल गई। जब पानी मीठा हो गया फिर उन्होंने वहां पे दरख्त देखे और उसकी छांव में आके उन्होंने क्या किया, वहां पे अपने खेमे लगाए और वहां पे उन्होंने सुकूनत की। आज जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं ताकि हम भी सुकूनत कर सकें। और डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुदा हमारा शाफी भी है, वो हमारा मुहाफ़िज़ भी है और वो हमारा मुहकम इलाह भी है। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में कोई भाई रहता ही करें।